Today, Neha, we are going to discuss passive structures. Our learners know that the whole grammar is properly and thoroughly covered if we focus on the eight categories of sentences. We have been telling them again and again. See, once they master those eight categories, then the rest of the grammar is only building on this foundation. This is the foundation, these eight structures. Uh, and because we then continue adding ideas to these this basic understanding that whenever we see for very competently and fully to speak English, we simply need to know those eight structures. But then we build on this information by adding a few more points. For example, we have told our learners that amount of time makes difference at two places. Uh, See, in king sentences and in continuous sentences, uh, you know, if we add amount of time, we already have discussed in detail. Then how we have to make changes? Uh, this we have done already, and then after that we have told our learners the two kinds of divisions of the sentence. Basic categories are eight, but then we have two ways of dividing these sentences. One is structural division. We have four kinds: positive, negative, interrogative, negative interrogative. And then we have tonal division. In tonal division, we have those six kinds: assertive, interrogative, and then imperative, optative, and then exclamatory, and finally let sentence. The sentences that begin with let. So now today we are adding another point. We are now sharing the idea of passive structures with our learners. The passive structures can be any, barring the thing sentences. For example, the door was open, the door is open, or the door will be open. In these sentences, there is no possibility of change of voice because there is no action word here. There is no action word here. So, but the rest of the sentences, all the seven sentences, possession, simple, continuing, perfect, intention, compulsion, and then modals. In all these cases, we can have passive versions. We can have passive versions. So, to start with the possessive sentences, for example, possessive sentences are I had a book, I have a book, I shall have a book. So, in Hindi और पंजाबी अगर इन सेंटेंस को हम ऐसे बोल लें कि मेरे पास किताब थी, मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब होगी, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये एक्टिविटी सेंटेंसेस नहीं है, ऐसे लगता है, ठीक है ना? लेकिन हमने जैसे पिछली बार किया था, तो इन सेंटेंसेस को हिंदी में एक और ढंग से भी कहा जा सकता है, ठीक है ना? आई हैड अ बुक, मैं किताब रखता था. आई हैव अ बुक, मैं किताब रखता हूँ. आई शैल हैव अ बुक, मेरे पास किताब, मैं किताब रखता हूँ. लाइक दिस. So so when we restate these possessive sentences like this, then they are only simple structure. They are nothing but simple structures. For example, जैसे I had a book, मैं किताब रखता था. It is just like मैं चाय पीता था. I took tea. So I had a book, I took tea. See, it is simple past. I have a book, or I take tea. This is simple present. And similarly, I shall have a book, or uh, I shall take tea. See, it is just like shall, will, after, and then V1 after that. Okay, it is like this. So possession. What I'm the point that I'm making is, when possession sentences change their structure, they can be changed into passive structures. Possessive, simple, and then continuing, and then after that, perfect, intention, compulsion, and modals. All of them can have their passive versions. This is one point that we want to make. And uh, but Neha, the most important thing is to understand very clearly what are active structures and what are passive structures. And when you ask this question, even from teachers, can you simply tell me what is active structure, what is passive structure? Then most of them, what do? They start talking that grammatical idea: subject, object, object, subject. That's it. They start telling that story.
and Yes. it doesn't make anything clear. And here again we use our mother tongue to make the idea very clear. You know, I tell my learners, look at these 6 sentences. I speak 6 sentences for them. कि मैं 17 सेक्टर जाता हूँ, मेरे दोस्त वहां आते हैं, हम कॉफी हाउस में जाते हैं, वहां पे कॉफी पी जाती है, वहां पे बड़े खाए जाते हैं और फिर गप्पे लगाई जाती है. Look at these 6 sentences. So I ask my learners to focus on these sentences and to find out, okay, what is the difference between the first three and the next three sentences. So then when they focus on these sentences, then they find out that in the first three cases, मैं 17 सेक्टर जाता हूँ. The subject is doer. The subject is मैं जाता हूँ. अच्छा, मेरे दोस्त वहां आते हैं. अगेन मेरे दोस्त, द सब्जेक्ट इज डूअर. हम कॉफी हाउस जाते हैं. अगेन द सब्जेक्ट इज डूअर. बट नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्री सेंटेंसेस. वहां पर कॉफी पी जाती है. कॉफी कॉफी इज द सब्जेक्ट, बट इट इज नॉन डूअर. सो आई आस्क देम टू रिमेंबर दिस टर्म नॉन. द सब्जेक्ट इज नॉन, अच्छा, बड़े खाए जाते हैं. दिस सब्जेक्ट इज नॉन डूअर. गप्पे लगाई जाती हैं. दिस इज नॉन डूअर. सो वेरी सिंपल. मदर टंग एकदम आपको ये बात क्लियर कर देती है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि हर हर एक्टिव स्ट्रक्चर का, चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पैसिव स्ट्रक्चर हो, सभी का एक सब्जेक्ट हो, सभी का सब्जेक्ट. तो हमने तो सब्जेक्ट पे फोकस करना है. इफ द सब्जेक्ट इज डूअर, देन इट इज अ एक्टिव स्ट्रक्चर. इफ द सब्जेक्ट इज नॉन डूअर, देन इट इज अ पैसिव स्ट्रक्चर. आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि हम शाम को मंदिर जाते हैं, हम वहां भजन करते हैं, फिर आरती की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है. अगेन लुक एट दीज फोर सेंटेंसेस. हम शाम को मंदिर जाते हैं, द सब्जेक्ट इज डूअर. हम वहां भजन करते हैं, द सब्जेक्ट इज डूअर. आरती की जाती है, द सब्जेक्ट इज नॉन डूअर. प्रसाद बांटा जाता है, द सब्जेक्ट इज नॉन डूअर. So I think from now on our learners become totally clear. So they have no confusion. It becomes totally clear to our learners, and there is no confusion left now. Okay, which are the active structures and which are the passive structures. So they are to simply remember. They are to focus on the subject. If the subject is doer, it is an active structure. If the subject is non-doer, then it is a passive structure. खुशी घोंसला बनाता है. Doer is active. घोंसला बनाया जाता है. Non is passive. अच्छा, हम किताबें खरीदेंगे. हम doer. किताबें खरीदी जाएंगी. Non doer. So it should be not totally clear which are active structures and which are passive structures. That's all. So drop all that idea, object, subject, subject, object. That doesn't make anything clear. Confusing. Like last time I told you how definite time, indefinite time doesn't make the idea of sense or for clear. Oh, see, we have two phrases there: point of time and period of time. Here we have two words: doer, non-doer. If the subject is doer, it is an active pattern. If the subject is non-doer, it is passive pattern. As simple as that. So once this thing has been understood, then it is very easy to at once understand all the passive structures of all the seven categories that we have talked about. Okay, so Neha, let us take the case of the past, simple past. Simple past or simple possessive. Simple possessive means simple past. Okay, so simple possession sentences. Simple possession sentences are a part of simple past. Okay, simple past. So what do we do? One thing is that wherever there is a passive pattern, we always use V3. Our learner must take note of this thing, that wherever there is a passive pattern, we always use V3 in all the passive structure. They may be in the past, they may be in the present, they may be in the they may be in any category of sentences. For example, out those seven categories. So all of them will always take V3. In passive structures, there will always be V3. This one idea. And then
then what is left? The other thing is that category wise, helping verbs will be different. For example, helping verbs will be different. Yes. So मैंने चाय पी, मैंने चाय, फॉर एग्जाम्पल, या मैं किताब रखता था, तो अब ये तो है, ये एक्टिव है। अच्छा, किताब रखी जाती थी, चाय पी जाती थी, तो क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस वी, वॉज वर्ब प्लस वी थी। चाय पी गई, द टी वॉज टेकन, द टी वॉज टेकन, दिस इज पैसिव ऑर्डर। मैंने आई टी, दिस इज एक्टिव, टी वॉज टेकन। So in simple past, the verb pattern is was verb plus V3. Was verb plus V3. I took tea, the tea was taken. मैं जैसे बता रहा हूं आपको कि सिंपल में पास्ट की बात कर रहा हूं। was प्लस was verb प्लस V3, वर्ब पैटर्न, पैसिव का वर्ब पैटर्न, ये पैसिव के वर्ब पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। सिंपल पास्ट में was verb प्लस V3, और कंटिन्यूइंग पास्ट में was being verb being प्लस V3, was being verb being प्लस V3, और परफेक्ट पास्ट में क्या होगा? had been प्लस V3, had been प्लस। ये तीन पहले करते, ये तीन हो गए। मैं कहूं कि I took tea, tea was taken, I was taking tea, tea was being taken, I had taken tea, the tea had been taken. अब यही प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर प्लस V3, और कंटिन्यूइंग प्रेजेंट में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस V3, क्योंकि आईएनजी दिखता है कंटिन्यूइंग में। yes. और परफेक्ट में क्या होगा? हैज बीन, हैव बीन प्लस। मैं एग्जांपल दूं कि मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, चाय पी जाती है, टी इज टेकन। अच्छा, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, चाय पी जा रही है, टी इज बीइंग टेकन। तो मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी, और उसके बाद चाय पी ली गई है, टी हैज बीन टेकन। अब फ्यूचर पे आना नेहा, यहाँ पे सिर्फ दो, अब तो सिंपल फ्यूचर होता है, उसका भी कैसे बनता है, और सिंपल परफेक्ट का भी बनता है, लेकिन सिंपल कंटिन्यूइंग का जो कंटिन्यूइंग, सॉरी, जो कंटिन्यू फ्यूचर होता है उसका नहीं बनता। सिंपल फ्यूचर का बनेगा। मैं चाय पीऊंगा, आई शैल टेक टी, चाय पी जाएगी, टी विल बी टेक, शैल बी वो। अच्छा, परफेक्ट में भी बनेगा। परफेक्ट में क्या होगा? मैंने चाय पी ली होगी, आई शैल हैव टेकन टी, टी विल हैव टेकन। ओके, तो लेकिन अब वहां कंटिन्यूइंग में, फ्यूचर कंटिन्यूइंग में पैसिव हम नहीं बना सकते नेहा। ये क्यों नहीं बना सकते? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना जरूरी है कि जब हम पास्ट में हमने तीनों बना लिए, सिंपल was पर प्लस V3, कंटिन्यूइंग was being were being प्लस V3, ओके, और परफेक्ट में क्या हो गया था? had been प्लस V3। ये पास्ट, और प्रेजेंट में is MR प्लस V3, और फिर कंटिन्यू में, और परफेक्ट में had been प्लस V3, ये हम बना चुके हैं। लेकिन ये क्या बात है कि हम फ्यूचर में शैल बी V3, शैल बी विल बी V3, सब हमने सिंपल का भी बना लिया, और परफेक्ट का भी हमने बना लिया कि टी विल हैव बीन टेकन। तो ये क्या बात है कि हम फ्यूचर का क्यों नहीं बना सकते? या आपको भी पता होगा कि इसका नहीं बनता। देखो ना, मैं क्यों नहीं बनता, इशू ये है कि इसका क्यों नहीं बनता। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बारे में मैं एक बात आपसे शेयर करता हूं कि क्यों नहीं। देखो, अब यहाँ में ये भी एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ लर्नर्स को कि अंग्रेजी क्योंकि हमारा कनेक्शन है दुनिया के साथ है। सो ये लिंगुआ, इसको कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका मींस अ लैंग्वेज दैट कनेक्ट्स यू टू द होल वर्ल्ड। तो ये इसलिए हमें अंग्रेजी पढ़नी पड़ रही है, नो डाउट। लेकिन आपकी हिंदी और पंजाबी अंग्रेजी से कहीं ज्यादा अमीर भाषाएं हैं। दे आर रिचर कंपेयर टू। अब देखना ना, अब देखना जरा, मैं मैं पास में कह सकता हूँ कि चाय पी जा रही है, मैं चाय पी जा रही हूँ, चाय पी जा रही थी, ये कैसे है? ये पास का पैसे है, टी वाज बीइंग टेकन, चाय पी जा रही है, ये प्रेजेंट का पैसे है। और मैं फ्यूचर में भी कहूंगा कि चाय पी जा रही होगी, मैं
पंजाबी में कह सकता हूँ, हिंदी में कह सकता हूँ, बट why can't we say it in English? This is very important, and this is the comparative poverty of English compared to our Punjabi and Hindi language. Okay, अब क्या कारण है मैं आपको समझाता हूँ। जो कोई भी वर्ब होती है ना, वर्ब, उससे तीन तरीकों से नहीं लिखते होते, तीन तरीके तो होते ही हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन एक्चुअली एक वर्ब को पांच पांच तरीकों से लिखा जाता है, पांच तरीकों से। ये बात, जैसे फॉर एग्जांपल स्विम वर्ब है, स्विम, SWIM, स्विम। अब जो स्विम है, इसकी पहली पहली इसकी एक फॉर्म होती है, या उसको आप कहते हो पार्टिसिपल, पार्टिसिपल स्विमिंग। स्विम के साथ ING लगा देते हो, स्विमिंग। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग दिस वर्ब, स्विमिंग। ये इसको आप कहते हो पार्टिसिपल। और फिर उसके बाद आ गया प्रेजेंट, स्विम, ठीक है। उसके बाद आ गया पास्ट, स्वेम, और उसके बाद आ गया पास्ट पार्टिसिपल, स्वम, और उसके बाद आ गया इसका इंफिनिटिव जो फॉर्म है, टू स्विम। सो एक वर्ब को पांच तरीकों से लिखा जाता है, पांच तरीकों से। मैं स्विमिंग, स्विम, स्वैम, स्वम, टू स्विम, ये पांच होते हैं एक वर्ब के। हम तीन तो जानते ही हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो हम प्रिंसिपल में ING के साथ लिखते हैं और इनफिनिट में टू से लिखते हैं, टू प्लस। अच्छा, अब आप आ जाओ, ये जो बी वर्ब है, बी, बी देखो ना, ये बी होती है, बी, बी का मतलब होता है इज़ेमार, बी का मतलब होता है इज़ेमार। उसके बाद बी, वॉज, वर और बिन, ये होती है इसकी जो बी वर्ब है, जिसका मतलब इसकी प्रेजेंट फॉर्म है बी, इज़ेमार, और पास्ट फॉर्म क्या है, वॉज, वर, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, बी। ओके, अच्छा, अब वो दूसरी दो इसकी क्या होंगी, पार्टिसिपल क्या होगा, बीइंग, बीइंग होगा ना पार्टिसिपल, और इन्फिनिटिव क्या होगा, टू बी। तो जो बी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इसके पांच रूप क्या होंगे, बीइंग, बी, वॉज वर, बिन और टू बी, ये होंगे ना पांच, पांच होंगे ना। अब देखना जरा, अगर मैं ये कहना चाहूं अंग्रेजी में कि चाय पी जा रही होगी, ठीक है, तो अंग्रेजी में कैसे होगा, द टी विल बी बीइंग टेकन, ऐसे होगी। अब देखो है उसको हम वो जो बीइंग है वो भी उसकी फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है, बी उसकी प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज वर्ब उसकी पास्ट फॉर्म है, बिन उसकी पास्ट पार्टिसिपल है, और टू भी उसकी वो इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो हम हिंदी में कह सकते हैं कि चाय पी जा रही होगी, लेकिन अगर इसे कहेंगे तो क्या बनेगा, द टी विल बी बीइंग टेकन, और बीइंग, ये तो वही वर्ब है। तो इसीलिए अंग्रेजी में ये जो आपका कॉन्टिन्यूइंग फ्यूचर है, उसका हम पैसिव नहीं बना सकते। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे ग्रामर में वो आपको एक वो चौथा, जिसको वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, लेकिन हमने उसे वैसे नहीं किया, हमने अपने आर्ट स्ट्रक्चर किए और बाद में अमाउंट ऑफ टाइम हमने अलग बात समझाई है अपने। लेकिन वहां भी अगर हम उस कन्वेंशनल ग्रामर की बात करें, तो आपको बताया जाता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी पैसिव नहीं बनता। जैसे पास क्या होता है, आई हैड बिन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो वहां वहां भी आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि आधे घंटे से चाय पी जा रही थी, आप कह सकते हो। लेकिन अंग्रेजी क्या होगा, द टी हैड बिन बीइंग टेकन। अब यहाँ पे बिन और बीइंग इकट्ठे, तो फिर आ गया भाई। तो ये कारण होता है कि आपके पास अगर टेंस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसमें इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो वर्ब रिपीट हो रही। ओके, ठीक है। सो अब मेरा ख्याल है ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्यों होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में हमारा वो जो पास्ट, जो सिंपल पास्ट है वहां पैसिव है, वॉज टेकन, और कंटिन्यू पास्ट है वहां पैसिव है, वाज बीइंग टेकन, और परफेक्ट भी पैसिव है, हैड बीन टेकन। और इसी तरह प्रेजेंट में सिंपल भी पैसिव है,
इज टेकन, और कॉन्टिन्यूइंग भी पैसिव है, इज बीइंग टेकन, और Okay. परफेक्ट भी हैज बीन टेकन। लेकिन फ्यूचर में हम हमारा सिंपल में बनेगा, सी विल बी टेकन, टी विल बी टेकन, और फिर हम परफेक्ट में भी कहेंगे टी विल हैव बीन टेकन। लेकिन हम टी विल बी बीइंग टेकन नहीं कहेंगे, वहां पे पैसिव नहीं होता, क्योंकि ये ग्रामेटिकल फॉल्ट हो गया। ओके, सो ये बात है एक तो।